بالآخر آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے، جس کے تحت عمران خان کو بطور وزیر اعظم اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے پراپرٹی ٹائکون کو 190 ملین پاؤنڈ کا فائدہ پہنچانے اور بدلے میں القادر یونیورسٹی کے نام پر 458 کنال زمین اور کروڑوں روپے لینے کے جرم میں 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے اور ان پر 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی عمران خان کی اہلیہ اور شریک ملزمہ بشرا بی بی کو 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ صرف یہی نہیں، احتساب عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کے پروجیکٹ القادر یونیورسٹی کو وفاقی حکومت کی تحویل میں دے دیا ہے۔ آج اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے فیصلہ سنایا تو اس کے بعد اڈیالہ جیل کے کمرہ عدالت سے ہی بشرا بی بی کو تحویل میں لے لیا گیا۔ آج عمران خان کو اس کیس میں 14 سال کی سزا ہونے کے بعد ان کے ایکس ہینڈل سے ان کا پیغام پوسٹ کیا گیا، جس میں عمران خان نے کہا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں اس آمریت کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا اور اس آمریت کے خلاف جد و جہد میں مجھے جتنی دیر بھی جیل کی کال کوٹڑی میں رہنا پڑا میں رہوں گا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ آج القادری ٹرسٹ کے کالے فیصلے کے بعد عدلیہ نے اپنی ساکھ مزید تباہ کر دی ہے۔ جو جج آمریت کو سپورٹ کرتا ہے اور اشاروں پر چلتا ہے اسے نواز دیا جاتا ہے۔ جن ججز کے نام اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بھیجے گئے ان کا واحد میرٹ میرے خلاف فیصلے دینا ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ یہ کیس تو دراصل نواز شریف اور اس کے بیٹے کے خلاف ہونا چاہیے تھا، جنہوں نے برطانیہ میں اپنی 9 ارب روپے کی پراپرٹی ٹائکون کو 18 ارب میں بیچی۔ سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس 9 ارب روپے کہاں سے آئے؟ القادر یونیورسٹی سے مجھے یا بشرا بی بی کو 1 ٹکے کا بھی فائدہ نہیں ہوا اور حکومت کو 1 ٹکے کا بھی نقصان نہیں ہوا۔ یہ عمران خان کا موقف ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ 148 صفحات پر مشتمل ہے۔ آج عمران خان اس معاملے سے فاصلہ اختیار کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف اسے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی کارروائی اور پھر پراپرٹی ٹائکون کے ساتھ پرائیویٹ سیٹلمنٹ قرار دے رہی ہے اور حسن نواز کی طرف سے 1 ہائیڈ پارک کی پراپرٹی کی ٹائکون کو فروخت کو اصل جرم اور رشوت قرار دیتے ہوئے عمران خان اس پر تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مگر آج عدالتی فیصلے میں دلچسپ حقائق بیان کیے گئے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی نے پراپرٹی ٹائکون کے خلاف تحقیقات شروع ہی تحریک انصاف کی حکومت کے کہنے پر کی تھی اور تحریک انصاف نے ان تحقیقات کا مطالبہ حسن نواز کو پکڑوانے کے لیے 1 ہائیڈ پارک کی پراپرٹی ٹائکون کے خاندان کو فروخت کے حوالے سے کیا تھا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا کے فیصلے کے مطابق عمران خان کی حکومت آنے اور پھر شہزاد اکبر کی سربراہی میں ایسٹ ریکوری یونٹ کے قیام کے فوراً بعد 19 نومبر 2018 کو ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے اسلام آباد میں موجود کنٹری مینیجر کو ایک خط لکھا گیا جس کا عنوان تھا منی لانڈرنگ اینڈ ٹرانسفر آف فنڈز فار پرچیز آف پرائم پراپرٹی ان لنڈن نون ایز 1 ہائیڈ پارک فار 42.5 ملین پاؤنڈز۔ اور اس خط میں کہا گیا تھا کہ پراپرٹی ٹائکون ان کے بیٹے اور ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف پاکستان میں کرپشن، منی لانڈرنگ، زمینوں پر قبضے اور اختیارات کے غلط استعمال کی انکوائری چل رہی ہیں۔ متعدد ادارے ان کے خلاف متعدد انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں جس میں نیب، FIA اور پنجاب اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ شامل ہیں۔ پھر اس کے 2 ہفتے بعد شہزاد اکبر کے ایسٹ ریکوری یونٹ نے اسی عنوان سے 1 ہائیڈ پارک کی خریداری میں انکوائری کے لیے نیشنل کرائم ایجنسی کو ایک اور خط لکھا اور پاکستان میں پراپرٹی ٹائکون، ان کے بیٹے اور ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف انویسٹیگیشن کا بتایا اور پھر اس خط کے 18 دن بعد 14 دسمبر 2018 کو نیشنل کرائم ایجنسی نے برطانیہ میں پراپرٹی ٹائکون اور ان کے اہل خانہ کے بینک اکاؤنٹس فریز کرنا شروع کر دیے جو کہ پروسیڈز آف کرائم ایکٹ 2002 کے تحت کیے گئے۔ مگر اس کے بعد کہانی میں ایک ٹوئسٹ آتا ہے، ایک یو ٹرن آتا ہے۔ پراپرٹی ٹائکون پاکستان میں ایک اہم کام کرتے ہیں۔ وہ اپریل 2019 میں جہلم میں سہاوا کے مقام پر 458 کنال زمین خرید کر عمران خان کے قریبی ساتھی زلفی بخاری کے نام پر منتقل کر دیتے ہیں اور پھر اپریل 2019 میں شہزاد اکبر کا ایسٹ ریکوری یونٹ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کو ایک اور خط لکھتا ہے اور اپنے ماضی کے خطوط پر اچانک یو ٹرن لے لیتا ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق 18 اپریل 2019 کو ایسٹ ریکوری یونٹ نے نیشنل کرائم ایجنسی کو خط لکھا جس کا عنوان وہی تھا جو ماضی میں تھا، یعنی منی لانڈرنگ اینڈ ٹرانسفر آف فنڈز فار پرچیز آف پرائم پراپرٹی ان لنڈن نون ایز 1 ہائیڈ پارک 42.5 ملین پاؤنڈ۔ مگر حیران کن طور پر اس خط میں نیشنل کرائم ایجنسی کو یہ بتایا گیا کہ پراپرٹی ٹائکون کے بیٹے نے لنڈن میں خریدی گئی 1 ہائیڈ پارک پراپرٹی کو پاکستان کے قوانین کے مطابق ڈکلیئر کیا ہے اور اس کے لیے 29 جون 2018 کو ہی پاکستانی قوانین کے مطابق $13,70,000 ٹیکس بھی ادا کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ
प्रॉपर्टी टाइकून की हाउसिंग सोसाइटी के भी सूबाई हुकूमतों के साथ मामला तय पा गए हैं और इसे 21 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी मेहरबानी का मुजाहरा करते हुए कबूल कर लिया है और जो माजी में नैब उनके खिलाफ तहकीकात कर रहा था उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। उस खत में यह भी बताया गया कि पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक वन हाइट पार्क की खरीदारी की पाकिस्तान में तहकीकात हो ही नहीं सकती और इस तरह मुल्जिम शहजाद अकबर ने बज़ाहिर नेशनल क्राइम एजेंसी को यह पैगाम पहुंचाया। हालांकि प्रॉपर्टी टाइकून और उनके खानदान के खिलाफ उस वक्त भी मुतादिद केसेस चल रहे थे, जिनमें नैब का वो केस भी था जो जाली अकाउंट केस में सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई GIT के नतीजे में चल रहा था, मगर खत में जानबूझकर उन केसेस का जिक्र ही नहीं किया गया ताकि प्रॉपर्टी टाइकून को फायदा पहुंचाया जाए। ये सब इमरान खान ने अपनी हुकूमत में किया। खुद NCA को कहा कि वन हाइट पार्क की फरोख्त पर कोई तहकीकात नहीं बनती और आज फिर हसन नवाज के वन हाइट पार्क की प्रॉपर्टी टाइकून को फरोख्त पर तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। फैसले के मुताबिक 2 दिसंबर 2019 को मुल्जिम शहजाद अकबर ने नोट फॉर द प्राइम मिनिस्टर के नाम से एक नोट तैयार किया जिसका मौजू अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर एंड रिपैट्रिएशन ऑफ फंड्स टू पाकिस्तान था और ये बात प्रोसिक्यूशन के गवाह नंबर 3 कैबिनेट डिवीजन के सेक्रेटरी जमील अहमद के बयान में नजर आती है। मज़कूरा नोट के पैराग्राफ 3 और 10 में मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने वाज़ेह किया कि हाउसिंग सोसाइटी ने NCA के साथ 139.7 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल करने का मुआहदा किया था, जो कि हाउसिंग सोसाइटी की लायबिलिटी के लिए मुख्तस था, मगर दर हकीकत शहजाद अकबर ने बेईमानी करते हुए ऐसा जाहिर किया कि जैसे ये रकम हुकूमती खजाने यानी रियासती पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल की जा रही है। साथ ही साथ इसी बहाने को जवाज़ बनाकर मज़कूरा रकम पर तमाम टैक्सों की छूट भी हासिल कर ली गई, जिससे हुकूमती खजाने को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा ताकि हाउसिंग सोसाइटी के साथ गठजोड़ के नतीजे में उसे गैर कानूनी और नाजायज़ फ़ायदा पहुँचाया जा सके। इस रकम की पाकिस्तान मुंतकली के हवाले से मुतल्लिका इदारों से भी मुशावरत नहीं की गई। फैसले के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा के अफसर अली शाहिद ने बतौर गवाह वाज़ेह तौर पर कहा कि वज़ारत ख़ारजा से मुशावरत नहीं की गई। वज़ारत कानून और वज़ारत इंसाफ के अफसर ने भी बतौर गवाह बताया कि वज़ारत कानून और इंसाफ से कोई राय नहीं मांगी गई थी। यहाँ तक कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वज़ारत ख़जाना के अफसरान ने बतौर गवाह बताया कि उनसे भी इस मामले पर कोई मुशावरत नहीं की गई थी। सिर्फ यही नहीं, वज़ारत ख़ारजा के गवाह के मुताबिक बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन तक से भी इस मामले पर कोई मुशावरत नहीं की गई थी। इसके बाद 3 दिसंबर 2019 को काबीना की इन कैमरा मीटिंग में नोट में बयान किए गए मौजू के साथ ये मामला एडिशनल आइटम के तौर पर पेश कर दिया गया, जिसमें काबीना ने नोट फॉर द प्राइम मिनिस्टर के पैराग्राफ नंबर 10 की मंजूरी दे दी। साथ ही काबीना के फैसले की रोशनी में कैबिनेट सेक्रेटरी को हिदायत की गई कि नोट को सील कर दिया जाए। इस कैबिनेट मीटिंग के मिनट्स की कॉपी दस्तयाब है। यहाँ ये बताना लाजमी है कि वज़ारत ख़ारजा के फराहम करदा रिकॉर्ड के मुताबिक काबीना की इस मीटिंग से पहले ही 6 नवंबर 2019 को मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ राजदारी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए थे। मुल्जिम बैरिस्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम ने बतौर गवाह इस मुआहदे पर दस्तखत किए थे और हैरानकुन बात यह है कि राजदारी के मुआहदे में जो अकाउंट नंबर फराहम किया गया वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट था, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में हाउसिंग सोसाइटी के जुर्माने की अदायगी के लिए मुख्तस किया गया था। यानी दर हकीकत ये रियासत पाकिस्तान का अकाउंट ही नहीं था। लिहाजा नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से प्रॉपर्टी टाइकून के बरतानिया में मुंजमद किए गए पैसे उस अकाउंट में 3 दिसंबर 2019 की काबीना मीटिंग से पहले ही आ गए थे। इस हवाले से प्रोसिक्यूशन ने शवाहिद और गवाहों के जरिए अपने मौक़िफ़ को साबित किया है। अदालती फैसले में मजीद लिखा है कि 26 दिसंबर 2019 की ट्रस्ट डीड के जरिए बाबर एवान ने अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट रजिस्टर कराया। मुल्जिम इमरान खान ट्रस्ट के चेयरमैन और ट्रस्टी बन गए। साथ ही 3 और ट्रस्टीज़ भी बनाए गए, जिनमें बाबर एवान, बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी शामिल थे। अहम बात यह है कि ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर्टी टाइकून को गैर कानूनी फ़ायदा पहुँचाने की टाइमिंग साथ साथ चल रही थी। रिकॉर्ड के मुताबिक 15 जनवरी 2022 को 2 मज़ीद ट्रस्टीज़ को शामिल किया गया, जो आरिफ नज़ीर भट्ट और मुल्जिमा फरहत शहजादी थे। और ये रिकॉर्ड से साबित हुआ है कि अल-कादिर ट्रस्ट की ट्रस्टी बनने से कुछ ही अरसा पहले हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से फरहत शहजादी के नाम पर इस्लामाबाद के मोड़ा नूर में 240 केनाल ज़मीन मुंतकिल कर दी गई थी। इस हवाले से फरहत शहजादी और हाउसिंग सोसाइटी से 53 करोड़ रुपए की अदायगी का सबूत मांगा गया, लेकिन अदालत को ये सबूत फराहम ही नहीं किया गया और साफ जाहिर है कि यह ज़मीन बग़ैर किसी रकम की अदायगी के फरहत शहजादी को इसलिए मुंतकिल कर दी गई थी ताकि वो इसे इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से अपने पास रखें। फरागोगी मुल्जिमान की फ्रंट पर्सन के तौर पर 53 करोड़ रुपए में इतनी बड़ी ज़मीन की खरीदारी की मनी ट्रेल और ज़राए का सबूत
नहीं पेश कर सकी। फरागोगी का मुल्जिमान इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ ताल्लुक एक खुला राज है, जो इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ अलकादरी ट्रस्ट की ट्रस्टी भी थी। ताहम बुकलाए सफाई का दावा है कि मज़कूरा ज़मीन के बदले में अदायगी की गई थी, जो पटवारी के बयान से वाज़ेह है, मगर इस दिफा पर बहुत कम ही यकीन किया जा सकता है। मगर पटवारी का बयान इससे बरक्स है, क्योंकि पटवारी म्यूटेशन का गवाह था, ना कि ट्रांजैक्शन का। इसके साथ साथ फरागोगी के पास मज़कूरा ज़मीन के लिए अदायगी करने के ज़राए ही नहीं थे और वो मनी ट्रेल भी पेश नहीं कर सकी। इस हवाले से 2019 से लेकर 2023 तक फरागोगी के टैक्स रिकॉर्ड्स में ही काफ़ी शवाहिद हैं। फैसले के मुताबिक रेवेन्यू रिकॉर्ड से इंकिशाफ होता है कि 458 केनाल ज़मीन 19 अप्रैल 2019 और 30 अप्रैल 2019 को जुल्फी बुखारी के जरिए अलकादरी ट्रस्ट के नाम पर मुंतकिल की गई थी, जिसे बाद में 22 जनवरी 2021 को अटॉर्नी तालिब हुसैन के जरिए जुल्फी बुखारी से अलकादरी ट्रस्ट को मुंतकिल कर दिया गया। मुंतकली की दस्तावेज़ में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि उस वक्त ट्रस्ट तश्कील के मराहिल में था। इस ज़मीन के अलावा प्रॉपर्टी टाइकून ने 28 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम भी अलकादरी ट्रस्ट के अकाउंट्स में मुंतकिल की। साथ ही प्रॉपर्टी टाइकून ने अलकादरी यूनिवर्सिटी को फाइनेंस किया, उसे तामीर करवाया, जिसकी मालियत अलकादरी यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने एक प्राइवेट इवेल्युएटर के जरिए 28 करोड़ रुपए से ज़ायद लगवाई थी। इसके अलावा प्रॉपर्टी टाइकून ने यूनिवर्सिटी के फर्नीचर, कंप्यूटर्स और दीगर अशिया भी फराहम की। मुल्जिमा बुशरा बीबी ने 24 मार्च 2021 को अलकादरी यूनिवर्सिटी और हाउसिंग सोसाइटी के दरमियान एक्नॉलेजमेंट ऑफ डोनेशन के मुआहदे के जरिए मज़कूरा ज़मीन को कबूल किया। फैसले के मुताबिक यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है कि नैब ऑर्डिनेंस के तहत नैब हेडक्वार्टर्स ने वजारत खारजा के जरिए बरतानवी अथॉरिटीज़ को म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की दरख्वास्त भेजी थी, जिसमें इस मामले पर 5 दस्तावेज़ात फराहम करने की दरख्वास्त की गई थी, जो अभी तक नहीं फराहम की गई हैं, जिसमें प्रॉपर्टी टाइकून की फैमिली के अकाउंट्स और हसन नवाज से खरीदी गई 1 हाइट पार्क प्रॉपर्टी के फ्रीजिंग ऑर्डर्स की तस्दीक शुदा कॉपियां और अदालत से हासिल किए गए ऑर्डर्स, नेशनल क्राइम एजेंसी की पाकिस्तानी हुकाम के साथ राब्ताकारी की मुकम्मल तफसीलात, प्रॉपर्टी टाइकून और उनकी फैमिली के साथ NCA का सेटलमेंट एग्रीमेंट और उन बैंक अकाउंट्स की तफसीलात जिनके जरिए मज़कूरा रकम पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल की गई। फैसले के मुताबिक मुल्जिम शहजाद अकबर और बैरिस्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम ने NCA के साथ कई मीटिंग्स की थी और वो इस बात से वाकिफ़ थे कि NCA ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट 2002 के तहत प्रॉपर्टी टाइकून की फैमिली के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के ऑर्डर्स हासिल किए हैं। इस हवाले से एसेट रिकवरी यूनिट के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये लिखा हुआ है कि अगर एसेट रिकवरी यूनिट को बैरून मुल्क किसी पाकिस्तानी के बारे में ऐसी मालूमात मिलती हैं तो इस मामले और मुतल्लिका शवाहिद को नैब या FIA वगैरह को रेफर कर सकता है, ताकि कानून के मुताबिक ज़रूरी और फौरी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। मगर अपने ही TORs की खिलाफ वर्जी करते हुए ना इस मामले को नैब को भेजा गया और ना ही FIA को भेजा गया, बल्कि मिर्ज़ा शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम ने बगैर किसी कानूनी इख्तियार के NCA के साथ इस मामले पर राब्ताकारी जारी रखी, ताकि बगैर किसी इख्तियार के उस रकम की किस्मत का फैसला किया जा सके जो रियासत पाकिस्तान को मिलनी थी। ये भी हैरान कुन है कि मिर्ज़ा शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम ने रियासत के खर्चे पर इस मामले के हवाले से बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के मुतवातिर दौरे किए, मगर अफसोसनाक तौर पर रियासत पाकिस्तान के ही मफाद के खिलाफ काम किया, ताकि रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हुए प्रॉपर्टी टाइकून और उसकी फैमिली को नाजायज़ फ़ायदा पहुंचाया जा सके। सिर्फ यही नहीं, मुल्जिम शहजाद अकबर वजारत कानून और इंसाफ से अप्रूवल लेने की तकाज़ों पर अमल दरामद से बचने में कामयाब हो गए, जिससे वाज़ेह होता है कि वो अपने गलत कामों को छुपाना चाहते थे। फैसले के मुताबिक एसेट रिकवरी यूनिट अपने चेयरमैन के जरिए हर 14 दिन में या वज़ीर आज़म की ख्वाहिश के मुताबिक वज़ीर आज़म को अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से रिपोर्ट देने का पाबंद था। इसलिए मज़कूरा हालात से वाज़ेह होता है कि मुल्जिम शहजाद अकबर बराह रास्त मुल्जिम इमरान खान को रिपोर्ट कर रहे थे और दोनों इस मामले में हैंड इन ग्लव्स थे। मजीद ये कि NCA में ज़ेर समात केसेस और रिकवरीज के हवाले से मुल्जिम शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम ने बरतानिया के कई दौरे किए, मगर दोनों मुल्जिमान ने बदनीयती और जुर्म के इरादे से NCA में जारी प्रॉपर्टी टाइकून के केस की तफसीलात से एसेट रिकवरी यूनिट के दीगर मेंबरान तक को भी अंधेरे में रखा। यहाँ पर इस बात की निशानदही करना भी ज़रूरी है कि नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ एसेट रिकवरी यूनिट की राब्ताकारी का सारा रिकॉर्ड मुल्जिम शहजाद अकबर और मुल्जिम ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम की फिजिकल कस्टडी में था और यही रिकॉर्ड एसेट रिकवरी यूनिट के दफ्तर से गायब है। इसलिए इस फैक्ट से यह जाहिर होता है कि यह अहम रिकॉर्ड जो हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत था, उसे मुल्जिमान के जराइम को धोने के लिए गायब कर दिया गया। साथ ही ये लीगल प्रोसेस में रुकावट डालने के मुतरादिफ भी है। काबीना डिवीजन की जानिब से एसेट रिकवरी यूनिट के मिसिंग रिकॉर्ड के हवाले से एक इंक्वायरी करवाई गई थी, जिसमें इसकी जिम्मेदारी मुल्जिमान शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम पर डाली गई है। फैसले के मुताबिक NCA को
کو शहजाद अकबर की तरफ से लिखे गए खत के मतन से वाज़ेह होता है कि प्रॉपर्टी टाइकून और उनकी फैमिली के खिलाफ पाकिस्तान में कोई क्रिमिनल तहकीकात ना होने का मकसद ये था कि बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से प्रॉपर्टी टाइकून और उनके ख़ानदान के खिलाफ तहकीकाती कार्रवाई को डिफ्यूज़ किया जा सके। और ये ख़त इस टाइम के साथ भी हम आहंग है कि जिस वक्त हाउसिंग सोसाइटी ने अल-कादरी ट्रस्ट के लिए ज़मीन खरीद कर जुल्फी बुखारी के नाम पर मुंतकिल की थी। इसके अलावा मुल्जिम इमरान खान, शहजाद अकबर और प्रॉपर्टी टाइकून का गठजोड़ जो उस वक्त बनी गाला में वज़ीर आज़म हाउस के विजिटर के रिकॉर्ड से भी वाज़ेह होता है, जिसके मुताबिक मुल्जिम शहजाद अकबर और प्रॉपर्टी टाइकून ने 11 जुलाई 2019 को बनी गाला में इमरान खान के दोनों घर गए ताकि अपने मुश्तरका मफादात के हवाले से अंडर हैंड डीलिंग यानी खुफिया तौर पर मामला तय कर सकें। इस हवाले से बनी गाला की एंट्री रजिस्ट्री की कॉपी सबूत के तौर पर दस्तियाब है। इसके बाद फैसले में एक दफ़ा फिर शहजाद अकबर की तरफ से बदनीयती से NCA से आने वाले पैसों को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डालने पर मज़ीद तफसीलात बयान की गई हैं और फिर लिखा है कि ये मैनिपुलेशन सिर्फ इसलिए की गई ताकि रियासत पाकिस्तान के लिए मुख्तस किए गए पैसों को डाइवर्ट करके प्रॉपर्टी टाइकून को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। हालांकि खुद मुल्जिम शहजाद अकबर ने जो नोट फॉर द प्राइम मिनिस्टर तैयार किया था उसके पैराग्राफ नंबर 10 में खुद ही कहा था कि जैसे कि ये रकम पाकिस्तान के ख़जाने में मुंतकिल की जा रही है तो इसलिए FBR इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 111(4) के तनाजुर में इसे देखे, यानी इस पर टैक्स ना लगाए। लिहाजा ये फैक्ट हर तरह से ये साबित करता है कि ये फंड्स रियासती ख़जाने को मुंतकिल किए जाने थे, मगर कानून और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर्टी टाइकून के फ़ायदे के लिए डाइवर्ट कर दिए गए। फैसले में मज़ीद लिखा है कि NCA की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज़ के अलावा शेड्यूल के साथ दस्तखत शुदा राजदारी के मुआहदे की कॉपी और प्रेस रिलीज़ प्रोसिक्यूशन के गवाह यानी ARU के डिप्टी सेक्रेटरी मोहसिन अमना के बयान में शामिल है, जिसमें एसेट रिकवरी यूनिट वाज़ेह तौर पर कहता है कि ये असासे रियासत पाकिस्तान को वापस दिए जाएंगे। यहां तक कि एसेट रिकवरी यूनिट ने 3 दिसंबर 2019 को अपनी प्रेस रिलीज में यह भी लिखा कि NCA रकम की फौरी तौर पर पाकिस्तान मुंतकली के लिए राजी हुआ है। फैसले के मुताबिक मुल्जिम इमरान खान और इश्तिहारी मुल्जिम शहजाद अकबर की मामलात से खुफिया तौर पर निमटना वज़ीर आज़म के साबिक सेक्रेटरी आज़म खान के बयान से भी साबित होता है। इमरान खान और शहजाद अकबर ने रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के रूल्स 18 और 20 की खुली खिलाफ वर्जी की, जो काबीना इजलास में केसेस को शामिल करने से मुताल्लिक है। इसके अलावा काबीना के कुछ अरकान बतौर गवाह पेश हुए। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि मिर्जा शहजाद अकबर ने एक सील्ड लिफाफा पेश किया और काबीना अरकान पर दबाव डाला कि वो इसकी मंजूरी दे, क्योंकि यह खुफिया मामला है। शहजाद अकबर ने काबीना को बताया कि बरतानिया से रियासत पाकिस्तान को पैसे मुंतकिल हुए हैं, राजदारी नेशनल क्राइम एजेंसी की शर्त है। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि मुल्जिम ने ऐसी कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं दिखाई कि पाकिस्तान की तरफ से डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी नेशनल क्राइम एजेंसी की ज़रूरत है। गवाह जुबैदा जलाल ने अपने बयान में बताया कि उन्होंने इसरार किया कि इस मामले में रियासत का पैसा शामिल है, इसलिए इस पर बाकायदा बहस ज़रूरी है। मगर मुल्जिम इमरान खान, जो वज़ीर आज़म की हैसियत से काबीना इजलास की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने बगैर बहस और मुशावरत के मंजूरी पर इसरार किया, इसलिए बगैर मज़ीद तफसीलात जाने एजेंडे की मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा गवाह परवेज़ खटक ने भी अपने बयान में यही बात कही और बताया कि इश्तिहारी मुल्जिम शहजाद अकबर ने गैर कानूनी तौर पर बगैर किसी इख्तियार के इमरान खान की मर्जी से काबीना से मंजूरी से पहले ही डीड पर 6 नवंबर 2019 को दस्तखत कर दिए थे। मुल्जिम ज़ियाउल मुस्तफ़ा ने भी अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए और रियासत के मफादात को नज़रअंदाज करते हुए डीड पर बतौर गवाह दस्तखत किए। फैसले के मुताबिक मुल्जिम इमरान खान की तरफ से शहजाद अकबर से पर्सनल मीटिंग के बाद मामले को काबीना में शामिल करने के अपने सवाबदीदी इख्तियार को इस्तेमाल करना, ये जानते हुए कि डीड पर दस्तखत हो चुके हैं और वो जमा कराई जा चुकी है, ये साबित करता है कि दोनों मुल्जिमान जल्दबाजी में अपना जुर्म छुपाना चाहते थे। हैरानकुन तौर पर डीड में जो अकाउंट नंबर लिखा हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का अकाउंट था, जो हाउसिंग सोसाइटी की लायबिलिटी की अदायगी के लिए था। ये बात साबित शुदा है कि मुल्जिम शहजाद अकबर ने शरीक मुल्जिम इमरान खान के इल्म और रजामंदी के साथ जानबूझकर बदनीयती के साथ रियासत पाकिस्तान का अकाउंट नंबर देने के बजाय रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट नंबर दे दिया ताकि नेशनल क्राइम एजेंसी को गुमराह किया जा सके। इससे कौमी खजाने को 171 मिलियन पाउंड का नुकसान पहुंचाया गया। यहाँ ये बताना जरूरी है कि जो बैंक अकाउंट डीड में बताया गया वो रियासत पाकिस्तान का अकाउंट नहीं था। फैसले के मुताबिक 9 जून 2022 को होने वाली काबीना मीटिंग के इजलास में 3 दिसंबर 2019 के सील्ड नोट को डी सील करने की सिफारिश की गई, जिसके बाद 14 जून के इजलास में काबीना ने नोट के मवाद को डी सील करने की मंजूरी दी, जिसे अदालत में बतौर शवाहिद पेश किया गया। फैसले के मुताबिक
کافی ثبوت ریکارڈ پر موجود ہیں جن سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ملزم عمران خان نے اشتہاری ملزم شہزاد اکبر اور دیگر شریک ملزمان کی ملی بھگت سے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے شریک ملزم پراپرٹی ٹائکون کو فائدہ پہنچانے کی خاطر ریاست پاکستان کو ملنے والے فنڈز کو سپریم کورٹ میں ہاؤسنگ سوسائٹی کی لائبلٹی اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ ملزم عمران خان کو اس بات کا علم تھا کہ 3 دسمبر 2019 کے کابینہ اجلاس میں پیش کی گئی خفیہ دستاویز 6 نومبر 2019 کو پہلے ہی اشتہاری ملزم شہزاد اکبر نے دستخط کر کے NCA کو جمع کروا دی تھی، اور پھر جب کابینہ اجلاس میں شرکاء نے اس اضافی ایجنڈے کے آئٹم نمبر 2 پر بحث شروع کی تو ملزم عمران خان نے اپنے غلط کاموں کو چھپانے کے لیے اس ایجنڈے کو بغیر کسی بحث کے ہی منظور کرنے پر زور دیا۔ ملزم عمران خان نے شریک ملزم شہزاد اکبر کے ساتھ مل کر نہ صرف کابینہ کو خفیہ دستاویز کے پہلے سے دستخط ہونے کے بارے میں گمراہ کیا اور دھوکہ دیا، بلکہ ملزمان نے جان بوجھ کر اور بدنیتی کے ساتھ کابینہ کو یہ بھی نہیں بتایا کہ رقم پہلے ہی پاکستان واپس آ چکی ہے اور ہاؤسنگ سوسائٹی کی اراضی کی قیمت کی ادائیگی کے لیے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی گئی تھی۔ احتساب عدالت کے فیصلے کے مطابق ملزمان عمران خان اور بشرا عمران خان کے دفاع میں سب سے زیادہ زور اس بیان پر دیا گیا کہ ان دونوں نے القادر یونیورسٹی پروجیکٹ سے 1 ٹکے کا بھی ذاتی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ اس دعوے پر اس لیے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہاؤسنگ سوسائٹی کی جانب سے القادر یونیورسٹی پروجیکٹ کو دی جانے والے بے پناہ عطیات اس فیور کے بدلے دیے گئے تھے جو انہیں پہنچایا گیا۔ قانون میں یہ بھی موجود ہے کہ کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر عطیات کی مدد سے ٹرسٹ نہیں بنا سکتا، اور نیب کے قوانین کے تحت ایسی پراپرٹی کو چاہے اس کا جو بھی مقصد ہو اسے حکومت کی ملکیت ہی کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ اعلیٰ اور پسندیدہ مقاصد کو بھی ایسے معاملات میں استثنا نہیں دیا جا سکتا جو بلا شبہ وائٹ کالر کرائمز میں آتے ہیں، جو آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ ایسے جرائم سے نمٹتے وقت ایک حقیقت پسندانہ، متحرک اور جامع نقطہ نظر اپنانا ضروری ہے۔ ملزم عمران خان نیازی نے اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے کہا کہ القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جو ایک اعلیٰ مقصد کے تحت ملک کے پسماندہ علاقوں کے طلبہ کے لیے بنایا گیا تاکہ وہ مکمل طور پر مفت معیاری تعلیم حاصل کر سکیں۔ فیصلے کے مطابق ایسا ٹرسٹ چاہے وہ کسی بھی اعلیٰ مقصد کے لیے ہی کیوں نہ ہو، کسی قسم کے ناجائز مفاد یا بدلے کی بنیاد پر قائم نہیں کیا جا سکتا۔ ناجائز مفاد کی اصطلاح کو صرف رقم یا جائیداد کے تناظر میں نہیں سمجھا جا سکتا۔ احتساب عدالت کے فیصلے کے مطابق اس کیس میں ملزم نے یہ کہہ کر استثنا مانگا کہ کابینہ کے فیصلے نیب آرڈیننس کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے اور جرم نہیں بنتا۔ اس معاملے کا سپریم کورٹ تفصیلی جائزہ لے کر قرار دے چکی ہے کہ کسی بھی قانون کو الگ تھلگ کر کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کے بعد فیصلے میں سپریم کورٹ کے متعدد فیصلوں کا حوالہ دیا گیا ہے اور مزید لکھا ہے کہ وکیل صفائی نے دلائل کے دوران اور عمران خان نے اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے مقدمے میں امتیازی سلوک ہونے کا معاملہ اٹھایا، اور عمران خان نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کیس میں مجھے اور میری اہلیہ کو سزا دلوانے کے لیے نیب کی پھرتیاں صاف ظاہر ہیں، حالانکہ اس مقدمے میں 6 مزید ملزمان بھی نامزد ہیں۔ پورا معاملہ دیکھے بغیر صرف ہم پر مقدمہ چلانا غیر منصفانہ، غیر منطقی اور ناجائز ہے۔ فیصلے میں اس کے بعد لکھا ہے کہ ریکارڈ کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ 6 دیگر ملزمان کو پہلے ہی 6 جنوری 2024 کے آرڈر کے تحت مفرور قرار دے کر ان کا کیس الگ کیا جا چکا ہے، اس لیے امتیازی سلوک کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ اس کے بعد فیصلے میں ماضی کے فیصلے کا حوالہ دے کر لکھا گیا ہے کہ ملزم عمران خان 8 اگست 2018 سے 10 اپریل 2022 تک وزیر اعظم پاکستان رہے، اور اپریل 2019 میں اشتہاری ملزم پراپرٹی ٹائکون ان کے بیٹے اور ہاؤسنگ سوسائٹی سے غیر قانونی مالی فوائد حاصل کیے، جن میں 458 کنال زمین اشتہاری ملزم ذوالفقار عباس بخاری کے ذریعے القادر یونیورسٹی پروجیکٹ نامی ایسے ٹرسٹ کے نام پر حاصل کی گئی جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ ملزم عمران خان نے یہ غیر قانونی مالی فوائد اس وقت حاصل کیے جب نہ تو القادری ٹرسٹ موجود تھا اور نہ یونیورسٹی قائم تھی، اور اس کے بدلے ملزم عمران خان نے دیگر شریک ملزمان کے ساتھ مل کر حکومت پاکستان کو ملنے والے 190 ملین پاؤنڈ میں سے 171 ملین پاؤنڈ بدنیتی سے غیر قانونی طور پر رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل کرا دیے تاکہ ہاؤسنگ سوسائٹی کی زمین کے پیسے ادا ہو جائیں۔ اس طرح سے اشتہاری ملزم پراپرٹی ٹائکون ان کے بیٹے اور ہاؤسنگ سوسائٹی کو فائدہ پہنچایا گیا، جو کہ اختیارات کا سنگین غلط استعمال ہے۔ فیصلے کے مطابق وکلائے صفائی استغاثہ کے گواہوں کے بیانات کو غلط ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ استغاثہ نے اپنے موقف کی بنیاد دستاویزات پر رکھی اور اس موقف کو تحمل کے ساتھ ثابت کیا۔ یہ بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ استغاثہ نے مستند، مربوط، قابل اعتبار، ناقابل تردید اور بھروسے کے لائق شواہد پیش کیے۔ یہ ضرور ہوا کہ گواہ نمبر 35 سمیت کچھ گواہان سے طویل اور تھکا دینے والی جرح ہوئی، مگر اس سے ان گواہوں کے قابل اعتبار ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ مجموعی طور پر ان کی گفتگو مربوط اور مسلسل تھی۔ استغاثہ کے شواہد میں کچھ معمولی غلطیاں اور تضادات ہو سکتے ہیں جو اس طرح کے وائٹ کالر جرائم کے مقدمات
जमात में होना एक फितरी बात है। आसान और सहूलत के मुताबिक मौके मिलने के बावजूद बुकला सफाई इस तगासा के मुकदमे में कोई अहम शगाफ या कमजोरी पैदा करने में नाकाम रहे। यहाँ तक कि सफाई में जो दस्तावेजात पेश की गई वो भी तकरीबन बेकार थीं। इसी तरह बुकला सफाई की जानिब से जो केस लॉ पेश किया गया वो भी मुकदमे के मुतल्लिका हकाइक और हालात से बहुत कम मुताल्लिक है। फैसले के मुताबिक इस मुकदमे के शवाहिद को जांचने से जो मालूमात सामने आई हैं उनकी रोशनी में समाअत के दौरान मुल्जिम इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से दायर की गई दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए निपटाई जाती हैं। जैसा कि ऊपर बहस की गई है, इस्तगासा ने कानून के दायरे में रहते हुए अपना मौक़िफ़ कामयाबी से साबित कर दिया है, जो शकूक व शुबहात से बाला तर रहकर मुल्जिम इमरान खान और बुशरा बीबी को कसूरवार करार दे रहा है। लिहाजा मुल्जिम इमरान खान नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार पाए हैं, उन्हें मुजरिम करार दिया जाता है। कोई सूरत ऐसी नहीं है कि उनके जुर्म को हल्का कर सके। उन्हें 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई जाती है और अदम अदायगी की सूरत में मज़ीद 6 माह कैद काटना होगी। मुजरिम कानून के तहत मराद का भी हकदार है। मुल्जिमा बुशरा बीबी भी नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत जुर्म में मदद, इयानत और सहूलतकारी के जुर्म की मुर्तकिब करार पाई हैं। लिहाजा उन्हें भी मुजरिम करार दिया जाता है। उनका किरदार करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस की मदद, इयानत और सहूलतकारी का है, जिससे सज़ा में कमी की सूरत पैदा हो सकती है। उन्हें 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई जाती है और अदम अदायगी की सूरत में मज़ीद 3 माह की कैद भुगतना होगी। फैसले के मुताबिक नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत जाली अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट वफाकी हुकूमत के हवाले किया जाता है। दोनों मुजरिमान नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 15 के तहत भी नताइज का सामना करेंगे। दोनों मुजरिमान अदालत में हाजिर हैं। उन्हें हिरासत में लेकर वारंट के साथ जेल सुप्रिटेंडेंट के हवाले किया जाए ताकि वो अपनी सज़ा काट सकें। आज हुकूमत ने इस फैसले के बाद रद्द अमल दिया। तहरीक इंसाफ ने भी रद्द अमल दिया। हुकूमत ने वेलकम किया, तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद किया।